ऐसे ही रखना है, रिपीट होता है, ठीक है ना। Good evening everyone, this is Chef Gurmeet from Chef's Forno, and Amul gave us one more opportunity to showcase something new, something creative for the viewers. So today is thin crust pizza. So how thin crust pizza is coming? I think we are not like. Yes, it's coming. So what is thin crust pizza? So normally हमने thin crust pizza के बारे में कभी भी सुना है. So we always say that it's American. So it's American California style, a very paper thin pizza. They have lots of ingredients like cheese, corn, bell pepper, your onion, tomato, everything. But let me tell you one more secret. So technically, thin crust pizza is actually from Sicily. Sicily is in Italy, a very old village of Italy. And if anybody heard about red brick pizza ovens, so technically, thin crust pizza is actually from Sicily, Italian. The improvised version of a thin crust pizza is American pizzas. Also, there is one more good thing about it, that thin crust pizza is more healthy. Why? Because you are going to have less of a dough, more of a vegetables, more of a protein, more of a nutrition value. So if everyone checked out my old videos where I have shown a recipe for a Napoleon pizzas. So our Napoleon pizzas or thin crust pizza recipe is almost same. The only difference is here the yeast content is a little lesser. So for everyone, I will just repeat the recipe of thin crust pizza dough, which is 1 kg of flour. If anyone wants to write it down, they can do. 750 ml of water. Yes, we use lot of water because I want to give lot of hydrogen in the dough. Then I use 10 gram of salt, 10 gram of sugar, and 5 gram of yeast. In my earlier recipe, the yeast was 10 gram, but here I am using only 5 gram. And then lots of good kneading, punch bag, and for thin crust pizzas, we take 150 gram of dough balls, which I have already make it ready. You see, I have designed a small refrigeration over here, drawer base where I am keeping my doughs. So if everyone can see, the dough is very sticky. For this, you have to use lot of flour. You can use it, but before anything, let me first sanitize my hands, which is very much required. So let me use lot of flour in my dough. एक चीज और बताऊंगा, जो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा का डो है वो थोड़ा सा हैंडल करने में यू नीड लिटिल स्किल लेवल, थोड़ा सा इसको आराम से हैंडल करने वाली चीज़ है. बट यस, पर आदत पड़ गई, यू कैन यूज इट. देयर इज नो रॉकेट साइंस. जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फूड के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. यू शुड लव योर फूड. सी, ऑल हैंड टोस्ट. क्या फ़र्क है नेपोलियन में और थिन क्रस्ट में? नेपोलियन में हम साइड्स को एरी करते थे, यहाँ पे हम साइड्स को बिल्कुल फ्लैटन कर देंगे. इट्स ऑल हैंड टोस्टेड. बाहर क्यों जाना जब हम इसको घर पे आराम से बना सकते हैं. योर ओन अमेरिकन स्टाइल थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा. सी, द डो इज वेरी लाइट. थोड़ा सा इसको फ्लैटन करेंगे हम हाथ से, और ये कहीं ज़रूरी नहीं है इसको आपको गोल ही बनाना है. ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि पिज़्ज़ा आपका गोल बनना चाहिए, ये थिन क्रस्ट बनना चाहिए. बाई चांस कभी इस तरह से आपका डो टूट जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं. इट्स इजी. स्ट्रेची है आपका डो स्ट्रेची है. हम बैंडेड लगाते हैं, बिल्कुल वैसे प्यारे से इसमें बैंडेड लगा दूंगा.
देयर इज नो प्रॉब्लम, ये कोई एरर नहीं है। इट्स अ नाइस होममेड काइंड ऑफ अ रेसिपी। बहुत सारा फ्लावर यूज़ करना है आपने, घबराना नहीं है। अगर कहीं लगे कि मैं डो हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। Hi Meena, yes I will repeat you the properties again please. So thin crust pizza के लिए मुझे मैदा चाहिए, strong flour which is 1 kg, and then मुझे 5 ग्राम ऑफ yeast चाहिए, 10 ग्राम ऑफ शुगर चाहिए, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट चाहिए, 750 ml ऑफ वाटर चाहिए। अच्छे से नीट करना है, ग्लूटेन फॉर्म होना चाहिए, बहुत इलास्टिक डो बनेगा, बहुत हल्का डो बनेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस डो को खाने के बाद यू नेवर फील हैवी। बच्चों को खिलाओ, आजकल वैसे ही हमने घर पे रहना है। सो व्हाट एल्स आई एम गोइंग टू यूज इट? सो आई हैव अमूल पनीर विद मी, नाइस न्यूट्रिशन अमूल पनीर। देन आई हैव अ नाइस गुड टोमेटो सॉस, बेल पेपर, देन आई हैव अ बेल पेपर green, then onion and corn. See, lot of nutritious thing. And yes, of course, अमूल चीज़, इसके बगैर तो काम बनेगा नहीं। अमूल चीज़ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक अच्छा बड़ा लेडल सॉस का, घर की बनी हुई सॉस है, बहुत आसान है बनाना। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो। नाइस गुड सॉस। मैं इसमें बढ़िया से बेल पेपर डाल दूंगा। इनको मैंने थोड़ा सा सौते करके रखा हुआ है, बेल पेपर्स को। देन आई हैव कॉर्न हियर, अगेन न्यूट्रिशन। कैमरा स्ट्रेट कर दो, किसी ने बोला है ऐसा नहीं चलेगा। यस 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 यस। देन सम मोर रेड बेल पेपर, अनियन, अमूल पनीर, इसको भी मैंने थोड़ा सा सौते करके रखा हुआ है। एंड देन मैंने अमूल की चीज़ को डाइस कर लिया था। सो डोंट कंपेयर इट विद दोस चीज़ी पिज़्ज़ाज। ये आपका एक हेल्दी, अच्छा वेजिटेरियन थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा में सबसे अच्छी बात ये है, आप बहुत ज़्यादा मैदा नहीं खाने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू ईट लॉट ऑफ डो, you're going to eat lot of vegetables. तो बच्चों को क्या खिलाना है? बच्चों को हमें खिलाना होता है lot of vegetables। तो ऐसे खिला देते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, मेरे अवन का टेम्परेचर। तो ये अवन जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है, इसमें एक अच्छा टेम्परेचर आता है फॉर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। मुझे 400-450 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए होता है। एक अच्छा ट्रेडिशनल डिज़ाइन का ये पिज़्ज़ा अवन है। और अगर आप देखो, यस आई हैव अ वेरी गुड टेम्परेचर 380 सेल्सियस, और इसका एयर का टेम्परेचर आ रहा है 434। वाई वी नीड हाई हीट पिज़्ज़ा ओवन फॉर आवर पिज़्ज़ाज? क्यों? आपका डो स्लिम है, पतला है। यू हैव टू कुक इट फास्ट सो दैट इट शुड नॉट बी ओवरकुक्ड। फास्ट बनेगा, यू विल गेट अ नाइस फ्लेवर ऑफ योर वेजिटेबल्स एंड डो। एंड ट्रेडिशनली हाई हीट पे पिज़्ज़ा बनता है, 300 डिग्री में पिज़्ज़ाज आर नॉट कमिंग आउट गुड। सो हाय मनीषा, मैं पिज़्ज़ा डो की रेसिपी ज़रूर दोबारा यूज़ करूँगा। थैंक यू पूजा, इट्स लुकिंग लवली। ये बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ है और ये आपको अच्छा लगने भी वाला है। एक बड़ा स्पैचुला, अगेन मैं इसमें मैदा डालूंगा। एक और मज़े की बात बताता हूँ, थोड़ी सी ट्रिक ज़रूर है इसको उठाने में, मगर अगर नहीं आता तो घबराना नहीं, हाथ से उठाओ यार। तो क्या हो गया, थिन क्रस्ट है, हल्का सा ओवर हो जाता है, इज नो प्रॉब्लम।
साथ में हम एक दो और मारेंगे फटाफट से, इसके अंदर हम सिर्फ मोज़रेला टाइप चीज रेसिपी यूज करेंगे। So this is traditional mozzarella pizza margherita. With lot of cheese, tomato, और इसे ग्रीन्स। Same dough, same recipe. It's just that we have to use more of cheese. इंडियंस को चीज ज्यादा पसंद है, why not? थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज वाला क्यों नहीं। सारा मेरा that's it, and here we go. Chef, fat in dough. Like, do we need to add fat in our dough? No, actually thin crust pizzas के अंदर I won't recommend you go for fat, or you can use a 50 ml of olive oil actually in your 1 kg of dough, which sounds good for your doughs and everything. Proportion again the same thing, olive oil good for you. You see this? अच्छा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, हल्का सा मैं इसको राउंड करूंगा। अब देखिए साइड्स इज लाइक लिटिल फ्लफी, तो जो एरिएशन है, एरिएशन इसी के अंदर ही रह पा रहा है। प्रतिमा, मैं रेसिपी आपको पूरी एकदम टाइप करके भेजूंगा। बिना मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना, तो आप बाहर जाके here we are preparing it, आते हैं, we are preparing it here only. Guys, here is your lovely thin crust pizzas. It hardly take 2 minutes. See this? Wow! Can you hear the crunch? See this? So एक अच्छे पिज़्ज़ास को कैसे देखेंगे, हल्का सा फोल्ड कीजिए एंड इट शुड टेक, सी एक पिज़्ज़ा पूरी की पूरी इंग्रेडिएंट्स जो उसके ऊपर टॉपिंग्स हैं उसको होल्ड कर पा रहा है। सो दैट मीन्स योर डो इज गुड, दैट मीन्स योर रेसिपी इज बैलेंस्ड, दैट मीन्स इट्स बेक्ड गुड। सी मैं एक स्लाइस और लेता हूँ, फोल्ड
it like this. See, it can hold. See, it's not bending. So that means the dough is good. Paramita, how much time should the dough rest after kneading? 6 hours is good enough. 6 hours is good for your kneading the dough. चीज़ यस. सो मैंने अनु चीज़ जो यूज़ करी है वो अमूल की मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है, जिसको मैंने डाइस कर लिया था, और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से फैली है. इट्स कम आउट गुड. सी, सो दिस मार्क्स दिस शुड कम इन एनी ऑफ द ट्रेडिशनल पिज़्ज़ाज. और इसमें खेल डो का है, इसमें खेल पिज़्ज़ा ओवन का है, उसके टेम्परेचर का है कि वो कितने अच्छे से बेक करता है, कितनी फास्ट बेक करता है. और आप अगर देखो एक एक स्लाइस जो मैंने काटा है, that's holding it. See, this is the cheese. Every kid love it. Every kid love it. Like this. So, it's yummy. It's actually come out good. Any more questions? Thank you, Deepa. Thanks a lot. I'm watching you make it. Is it possible to make at home? Yes, Nina. ये मैंने घर पे ही बनाया है. मैंने किसी होटल में नहीं बनाया है इसको. ये घर में बहुत आसान है बनाना. मैं हमेशा कहता हूँ your recipes are you just have to follow the recipe, but you should understand about the ingredients. आप ingredients समझ गए, आप अच्छे से कोई भी खाना अच्छे से बना सकते हो. मैं पर्सनली रेसिपीज़ को थोड़ा कम फॉलो करता हूँ. मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि you understand your ingredients, you can cook your food, you can easily cook your food. प्रतिभा माइक्रोवेव में बना सकते हैं क्या? नहीं प्रतिभा, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको माइक्रोवेव ओवन में नहीं बना सकते हैं यार. थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहने देते हैं ना, थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं. अब हाउ अबाउट enjoying something traditionally at home? जब हमें the time is a little, I would say, मैं टफ नहीं बोलता हूँ, they have to be very positive. Time is different. Stay home, traditional करते हैं. So why not you give experience to your family a very traditional thing? छोड़ो माइक्रोवेव ओवन, ट्रेडिशनल करते हैं कुछ. थैंक यू सीमा, थैंक्स अ लॉट. शाह, मैं रेसिपी को दोबारा एक बार लिख के अमूल पे डाल दूंगा. आई थिंक यू ऑल विल गोना लव इट. सो गुड लक, स्टे होम एंड टू केयर ऑफ योर फैमिली, विच इज़ मस्ट रिक्वायर्ड. और घर पे रहना है, घर पे अच्छा खाना बनाना है. थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, चाओ.